پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، نیلگون دریا، گنگناتے جھرنے اور سرسبز و شاداب میدان ہیں جو دلوں کو فرحت بخشتے ہیں اور آنکھوں کو طراوت عطا کرتے ہیں۔ یہاں حسن کی دھنک کے سارے رنگ دیکھے جا سکتے ہیں۔ موسم کا تنوع اہل پاکستان کو حسن کی لطافت سے آشنا کرا دیتا ہے، لیکن پاکستان کی اس پرکشش، دلکش اور حسین تصویر کے پہلو بپہلو بے کسی، بے بسی، قسم پرسی، لاچاری اور غربت کے دلدوز مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کہیں مفلسی کا غم انگیز فسانہ جو خون کے آنسو رلا دے، کہیں اجڑے گھر کی دلفگار کہانی جسے سن کر انسان بے کل ہو جائے، کہیں بیماری اور لاچاری کی جگر پاش داستان جو تڑپا کر رکھ دے، اور کہیں حالات کی ٹھوکروں کی زد میں آئی بے سہارا زندگیوں کے درد بھرے قصے جنہیں سننے کا یارہ اور حوصلہ نہ ہو۔ حالات کا جبر دلدل کی مانند جو کمزوروں کو نگلتا جائے، زندگی مفلس کی قبا جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگتے جائیں۔ یہ مناظر، یہ کہانیاں، یہ داستانیں اور یہ قصے، درد کی لہریں جن پر حسرت کی ناؤ منزل کے لیے سرگرداں، وہ منزل جہاں درد درد مندوں میں بٹ جائے اور غم غم گساروں میں تقسیم ہو جائے، بے کسی سہارا تلاش کرے اور ٹھوکریں ماوا و ملجا ڈھونڈ لیں۔ اس منزل کا سراغ معاشرے کے اجتماعی شعور کی بیداری میں پنہاں ہے۔ اس کا اہم سنگ میل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان۔ خدمت خلق کا یہ کام قیام پاکستان کے ابتدائی دنوں ہی سے جاری ہے، جب خون میں لت پت مہاجرین کے لٹے پٹے قافلوں کو پیٹ بھرنے کے لیے خوراک، سر چھپانے کے لیے چھت اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت تھی، تو خدمت کے جذبے سے سرشار مشکل کی اس گھڑی میں انصار مدینہ کی یاد تازہ کرتی، آہوں اور سسکیوں میں ڈوبے رفقا کی موجودگی میں شہداء کی تدفین اور زخمیوں کی ہسپتال منتقلی کا فریضہ انجام دیا۔ نصف صدی کے سفر میں مختلف ناموں سے کام کرنے والے اس ادارے نے اہل پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھا۔ بالکل شروع میں خدمت خلق کا کام جو تھا وہ 1947-48 میں ہی شروع ہو گیا تھا، اس لیے اس وقت جب مشرقی پنجاب سے لوٹے پٹے قتل و غارت گری کے شکار، خون سے ان کے جسم کپڑے بھرے ہوئے یا لاشیں آ رہی تھیں یا زخمی آ رہے تھے، تو وہ جب پہنچے ہیں لاہور پہ، چونکہ مشرقی پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر فسادات شروع ہو گئے تھے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان، تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر لاہور کے اندر پورے شہر کے اندر ہم نے کیمپ لگا دیے تھے، اور ان کیمپس پر ہم ان لوگوں کا استقبال کرتے تھے، کیمپ پر ان کو ٹھہراتے تھے، ان کو کھانا فراہم کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی ان کو جانا ہوتا تھا ان کو ہم پہنچوا دیتے تھے۔ یہ ہمارا پہلا ابتدا تھی کام کی پاکستان بننے کے فوراً بعد، اور جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی انسانیت کی خدمت کی ضرورت ہوتی تھی ہم وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا قیام 1992 میں عمل میں آیا۔ آج یہ بلا مبالغہ پاکستان کی سب سے بڑی NGO ہے، جس نے شعبۂ زندگی میں اپنی خدمات کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ تعلیم، صحت، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، ایمرجنسی ریلیف اور اوورسیز پروجیکٹس اس کی ہمہ جہت کام کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ابتدا میں الخدمت فاؤنڈیشن کا کام مستحق مریضوں کے لیے سہولیات کی فراہمی، قدرتی آفات کے موقع پر فوری ریلیف، نادار لوگوں کی مالی معاونت اور جیلوں میں قیدیوں کی امداد تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ملک بھر میں الخدمت ہسپتالوں، فری میڈیکل کیمپس، ڈسپینسریز، ووکیشنل سینٹرز، یتیم بچوں کے لیے ہاسٹل اور الخدمت ڈائگنوسٹک لیب کا جال بچھا دیا۔ آج الخدمت فاؤنڈیشن
अपने वसी तरीन नेटवर्क और रजाकारों के पुरखलूस व बेलौस ताउन के साथ मुल्क के कोने कोने में मौजूद है। मुल्क के किसी भी हिस्से में आने वाला खौफनाक जलजला हो या सैलाब की तबाहकारियां, अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमात हमेशा सफ़े अव्वल में नजर आती हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की इम्तियाजी खुसूसियत बिला तफरीक मजहब व मिल्लत और रंग व नस्ल अपनी खिदमात का जारी रखना है। इसकी नुमाया मिसाल इसकी वो बहुत बड़ी तादाद में डिस्पेंसरीज हैं जो उन इलाकों में कायम हैं जहां गैर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। अंदरूने मुल्क की कच्ची आबादियों, गोठों, ब्याबो ग्याह थरपारकर में हिंदू अक्सरियत की बस्तियों में फराहमी आप के लिए जमजम प्रोजेक्ट के तहत नलकों और कुओं की खुदाई, अल इल्म प्रोजेक्ट के जरिए स्कूल्स का क़याम और इंतहाई कम कीमत पर अशियाए खुर्द-ओ-नोश की फराहमी, जंग की तबाहकारियों का शिकार अफगानी और कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की तरसील इसकी अमली खिदमात का जिंदा सबूत हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के शाना बशाना फाउंडेशन से मुंसलिक इदारा अल खिदमत ख़वातीन ट्रस्ट भी मसरूफ़ जिद्दोजहद है। ट्रस्ट की हज़ारों मुनज़्ज़म ख़वातीन खिदमत और यकीन के जज्बों से सरशार, गुर्बत व इफलास से पिसे तबक़ात की इमदाद में सरगर्म हैं। अल खिदमत ख़वातीन के इंडस्ट्रियल होम्स के ज़रिए ख़वातीन की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश का एहतमाम किया जाता है, जो ख़वातीन के लिए महफूज और बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के साथ साथ इनकी फ़न्नी सलाहियतों को उजागर करने का अमली इक़दाम है। खुला, तलाक, जायदाद और दीगर तनाज़ात व मसाइल की कानूनी व मजहबी मुशावरत अल खिदमत ख़वातीन के इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। नादार घरानों की बच्चियों के लिए जहेज़ बॉक्स और माली मुआवनत अल खिदमत ख़वातीन की खिदमात का नुमाया पहलू हैं। इसके साथ साथ तालीम के शोबे में जामियातुल मुहसिनात में तालिबात को पुरसुकून माहौल में मेयारी तालीम की फराहमी, कच्ची आबादियों में बैठक स्कूल्स के ज़रिए गरीब बच्चों के लिए हुसूल इल्म की कोशिशें और बेघरों बेसहारा ख़वातीन के लिए गोशे आफ़ियत भी अल खिदमत ख़वातीन के अहम प्रोजेक्ट्स हैं। अल खिदमत फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खातिर अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क पाई पाई जमा करती है और इस मुक़द्दस मिशन का अलंबरदार होने के नाते इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम तर इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँच जाए। अल खिदमत के तमाम ओहदेदारान रज़ाकार हैं, जिसके नतीजे में हमारे इंतज़ामी अखराजात न होने के बराबर हैं। इसके अलावा हमें हज़ारों रज़ाकारों का ताबन भी हासिल है। अल खिदमत फाउंडेशन की बदौलत लाखों ज़रूरतमंदों और सफ़ेद पोश घरानों की दादरसी और दर्द से तड़पते हुए गरीबों की देखभाल अस्पतालों में हो रही है। तबाहशुदा बस्तियों की तामीर नौ जारी है। सैलाब, जलजले और कुदरती आफात को रोकना नामुमकिन है, लेकिन मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखना तो मुमकिन है। हम इनके दर्द की दवा तो बन सकते हैं। याद रखिए, मखलूक की खिदमत एक बड़ी इबादत है। कौन है जो इस अजीम शान मकसद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की मुआवनत करे, जो मुसीबत ज़दा इंसानियत के दुखों का मदावा करे। जिंदगी एक बोझ है, मगर इसे उठाना तो है अपनी खातिर न सही, अपने प्यारों के लिए ही सही। इसलिए ये नातवां कंधे और कमजोर बाजू अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी उठाए फिरते हैं। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब कहाँ, बस तारीक राहों में टिमटिमाती बसारत की लौ है जो जिंदगी के जवाज को ढूंढती फिरती है। ऐसे में अगर बीमारी हमला कर दे तो नातवां कंधे मुज़महिल
और कमजोर बाजू बेकार हो जाएं। इन हालात में ये बोझ कहाँ उठाएंगे, खुद जिंदगी पर एक बोझ बन जाएंगे। यूं कई जिंदगियां बदकिस्मती की नजर हो जाएं। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। जहां 2 वक्त की रोटी भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो, वहां इलाज का आब हयात कौन तलाश करे। इन हालात में मायूस निगाहें ढूंढती हैं दर्द की दवा और मरज का इलाज। कोई मसीहा जो इन्हें उम्मीद की किरण दिखा सके। मायूसी के इन अंधेरों में अल-खिदमत बनती है दर्द की दवा और मरज का इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल-खिदमत फाउंडेशन सेहत के शोबे में सरगर्म अमल है। ये मुल्क के छोटे बड़े शहरों, बिलखुसूस पसमानदा और देही इलाकों में गरीब और मुस्तहिक अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात वहां पहुंचाने के लिए कोशां है। तजर्बाकार और क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ की ज़ेरे निगरानी फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जाता है और अल-खिदमत हस्पतालों और डिस्पेंसरियों में इलाज मुआलजे की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन अपने डॉक्टर्स के ज़रिए और पीमा के तावन से इस काम में भी लगी हुई है और हज़ारों की तादाद में लोगों की मुफ्त सर्जरीज की गई, जिनमें इंट्राओकुलर लेंसेज भी इम्प्लांट किए गए। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी एक बढ़ता हुआ चैलेंज है। उसकी स्क्रीनिंग के लिए, उसके इलाज के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन ने बड़े पैमाने पर शहरों के अंदर जहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं वहाँ पर इस काम का आगाज़ किया है। इसी तरह सिंध के दूर दराज के इलाके, थर और इससे मुलाका इलाकों के अंदर टीबी एक बार फिर अपना सर उठा रही है। वहाँ पे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम अल-खिदमत फाउंडेशन ने अपने डॉक्टर्स के ज़रिए से वहाँ पर उसका आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम अब भी जारी है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने खिदमत को इबादत समझते हुए कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पिशावर, सियालकोट, सरगोधा, साहिवाल, टंडो अलायार और कोटरी में अल-खिदमत अस्पताल कायम किए हैं, जिनमें शहरियों को रियायती निर्खों पर गायनी, आई केयर, डेंटल, NICU, लेबॉर्ट्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जनरल सर्विसेज फराहम की जाती हैं। मेरी बीवी की शदीद तबीयत ख़राब हुई, ऑपरेशन हुआ। मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझमें ताकत नहीं थी। मेरा तमाम काम जो है, ऑपरेशन, दवाइयाँ, सब कुछ अल-खिदमत फाउंडेशन ने बर्दाश्त किया है। अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम कराची, फैसलाबाद, चित्राल, लाहौर और रावलपिंडी में डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां शहरियों को मुनासिब कीमत पर फार्मेसी, एक्सरे, लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड और जनरल सर्विसेज मुहैया की जाती हैं। इसके अलावा कराची, क्वेटा, लाहौर और पेशावर समेत मुजफ्फराबाद में मेगा डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां सिटी स्कैन और MRI की सहूलियात इंतहाई कम कीमत पर मुहैया की जाती हैं। पसमानदा इलाकों में गरीबों को इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप, आई सर्जरी और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का इनेकाद भी किया जाता है। इसमें हमने कई चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं सेहत के मैदान में। यानी हमने बड़े अस्पताल भी डेवलप किए हैं, हमने मैटरनिटी सर्विसेज भी डेवलप किए हैं और ख़ास तौर पे हमने इन्वेस्टिगेशन साइट को यानी लेबॉर्ट्रीज़ को टारगेट किया है। बड़े पैमाने पे हमने लेबॉर्ट्रीज़ बनाई है। अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर चित्राल में डेवलप किया है, जिसमें लेबॉर्ट्रीज़ के साथ साथ जिसमें बायोकेमिकल और बुनियादी टेस्ट होते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर एक्सरे की फैसिलिटी मौजूद है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मौजूद है, ECG की फैसिलिटी मौजूद है। यानी एक ही जगह पर इन सब चीज़ों को हमने जमा किया है और यही मॉडल है जो हम चाहते हैं कि हर जगह पर हम इस अंदाज में इंशाल्लाह डेवलप करें। हेल्थ साइड पे हमारी बड़ी एक्टिविटी है, वो
फ्री मेडिकल कैंप्स हैं। 120 पिछले साल यानी हमने 120 मकामात पर कैंप्स लगाए, जिससे हजारों की लाखों की तादाद में मरीजों ने इस्तेफादा किया। अल खिदमत फाउंडेशन की ये खिदमात रात के अंधेरों में टिमटिमाते तारों की मानद हैं, जिनसे बहुत ज्यादा रोशनी न सही रास्ते का सुराग और मंजिल का पता तो मिलता है, और फिर गुप्त अंधेरे में नन्हा सा जुगनू भी मिसाले आफताब बनकर चमकता है। कतरे कतरे से समंदर बनता है और जर्रे जर्रे से कायनात। आइए अपने हिस्से की शमा जलाएं, किसी के लिए सुकून का जरिया बने और किसी के लिए शिफा का पैगाम। आपकी इमदाद किसी की रगों में जिंदगी बनकर दौड़ेगी और किसी के चेहरे पर शिफा बनकर जलवा अफरोज होगी। अल खिदमत के अस्पतालों और फ्री मेडिकल कैंप्स पर नादार मरीज आपकी जानिब देख रहे हैं। खुशहाल इंसानों की बस्ती, जहां खुशियां बिखरी हुई हैं, लेकिन ये खुशियां जो हमारे घरों में अमानत हैं, उन नादारों की जो दुखों के गिरदाब में फंसे हुए हैं। बेबसी और बेकसी ने जिन्हें पशमुर्दा कर दिया है, वो एक दस्तक के मुंतजिर हैं, जो हमदर्दी का पैकर हाथ उनके दरे इफ्लास पर दे और उन्हें वो खुशी लौटा दे जो हमारे पास अमानत है। ईद के मौके पर नए कपड़ों की खुशी, घरों में वसीले रोजगार बनने वाली सिलाई मशीन हासिल करने की खुशी, पेट भरकर खाना खाने की खुशी, कोई छोटा मोटा रोजगार हासिल करने की खुशी। अल खिदमत फाउंडेशन ये सारी खुशियां इकट्ठी करके मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाती है। कितनी बेटियां जहेज के इंतजार में बैठी हैं, जिनके बालों में चांदी उतरना शुरू हो गई। बेवा औरतें, जिनके नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का गिरा बोझ आन पड़ा है। लाचार कैदी, जो जेल की सलाखों के पीछे मुंतजिर है। जिंदगी के समंदर में बेरोजगारी की लहरों से लड़ता हुआ जवान, ये सब हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन इन उम्मीद भरी नजरों का महवर व मरकज है। मुआशरे के ऐसे खानदान जो वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से शादी जैसे आम फरीजे को सरअंजाम नहीं दे सकते, ऐसे लोगों की मुआवनत के लिए शादी आसान प्रोजेक्ट के जरिए इज्तिमाई शादियां की जाती हैं, जिनमें जहेज और दीगर जरूरियात जिंदगी इन्हें बतौर तोहफा दी जाती हैं। गरीब और बेवा औरतों में सिलाई मशीनें तकसीम की जाती हैं, ताकि वो घर बैठे बावकार और आबरूमंदाना तरीके से अपना और यतीम बच्चों का पेट पाल सकें। खवातीन को फनी तालीम फराहम करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, ताकि फनी तालीम की मदद से गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल पर काबू पाया जा सके। खास तौर पर जलजला ज़दा इलाकों में खवातीन और नौजवानों को फनी तरबियत देने के लिए कई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स काम कर रहे हैं। अल खिदमत खवातीन के इंडस्ट्रियल होम्स के जरिए खवातीन की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश का एहतमाम किया जाता है, जो खवातीन के लिए महफूज और बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी के साथ साथ इनकी फनी सलाहियतों को उजागर करने का अमली इक़दाम है। अल खिदमत में मैं इस कंडीशन में आई थी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल थी, तो यहाँ पे मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है कि एहसान है, काफ़ी सपोर्ट मिली, काफ़ी मदद ही, रोज़गार मुझे फराहम किया गया। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी कमाते नहीं हैं। यहाँ आई, मैंने अपनी परेशानी बताई, हाथों हाथ मुझे लिया गया, मेरा मसला सुना गया, जो मुझ पर कर्ज था उसमें खातिर ख्वाह कमी कराई गई, अदा किया गया और रोज़गार की फराहमी मुझे की गई। बच्चों के कपड़ों की सिलाई वगैरह मैं करती हूँ, एप्लिक्स की चादरें बनाती हूँ, उसका मुझे मुआवजा दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में यतीमों, बेवाओं और मुस्तहिक लोगों में बड़े पैमाने पर अशियाए खुर्दोनोश तकसीम की जाती हैं, ताकि महंगाई के इस दौर में गरीब लोग भी बाबरकत महीने की रहमतों
और बरकतों से मुकम्मल यकसुई के साथ फैज़याब हो सकें। ईदैन के मौके पर गरीब अफराद को खुशियों में शरीक करने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं। कच्ची आबादियों और ज़लज़ला ज़दा इलाकों में ईद गिफ्ट तैयार करके तकसीम किए जाते हैं, जिनमें कपड़े, खाने पीने की अशिया, खिलौने और दीगर सामान होता है। जेल में कैदियों की हालत नागुफ्ताबे होती है। यहाँ अखलाकी तरबियत, तिब्बी सहूलियात और रोज़मर्रा ज़रूरियात का फुक़दान होता है। अल खिदमत फाउंडेशन रमज़ानुल मुबारक में कैदियों को सहर व इफ्तार पर बेहतरीन और उम्दा खाना फराहम करती है। जेलों में पंखे, दीनी और अखलाकी कुतुब और मेडिकल का सामान भी मुहैया किया जाता है। मामूली जुर्माना अदा न कर सकने वाले कैदियों के जुर्माने की अदायगी के जरिए रिहाई अमल में लाई जाती है।